Chanakya of politics, not only in Assam, but in the whole of northeastern states. He enjoys great popularity among the constituency he caters to. In 2016, when BJP created history by forming the government for the first time in Assam, Himanta Biswa Sarma had the role, apart from Sarbanand Sonowal, behind this success. Himanta remains in the news for his statements, be it the matter of loudspeakers in mosque or his decision of converting government madrasas into schools. Assam, being the border state, has always been used as a hotbed for anti-national and jihadi activities. Himanta has waged a war against these elements. Apart from politics, Himanta has the inclination for sports as well. He has been the president of Badminton Association of India, Media Mahamanthan organized by Panchjanya and organizer. Welcome Shri Himanta Biswa Sarma. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा जी का। और अब इस सत्र का संचालन करेंगे अतुल केतकर जी। Thank you very much, ladies and gentlemen. We have another firebrand voice from Northeast, Shri Himanta Biswa Sarma ji, Chief Minister of Assam. Though he is not a second-time Chief Minister like earlier Chief Ministers of the day, his innings is not less than a double century. So before starting the real test of his leadership, I, on behalf of organizer and Panchajanya and the people sitting here, I would like to pay our sincere condolences for the losses that Assam state have faced recently due to floods. Unfortunately, Delhi media has been, as usual, very insensitive, because 22 districts of Assam have been, and you have been working for the relief operation. Can you please update us what is there and how government is responding to the relief flood situation in Assam? Assam experience flood every year, but this time we experience it quite early, and almost 22 district has suffered. But out of all, one of our hill district, namely Dima Hasao, has been cut off by road, by railway, and they are suffering like anything. Last 3-4 days we are airdropping food materials. Today we have airdrop diesel, petrol. So they are suffering like you can just have an idea when they are being not linked with the mainland for last 7 days. But anyway, with the help of everybody, I am sure that we will be able to restore the land link or railway link soon, and normalcy will be restored. But yes, this is a very challenging time for us. Thank you, Himanta da. I know that this must be a very difficult, decision for you. I know as an able administrator, you must be handling things from here also, but you have made it for organizer and Panchajanya for this day, despite having difficult times in Assam, and you are managing both the fronts very well. So really, gratitude. Let us start with the recent incident in Assam. Many people may not be knowing. Yesterday there was a situation in Assam where in Nagaon, a police station was burned by a mob because some person from some community was arrested by police. And you have a very forthright situation, and we have recently seen, ladies and gentlemen, कि असम में भी बुलडोजर चला है.
तो how long and how far this situation in bordering area is getting grave? देखिए, असम में जो हम लोग कर रहा है, ये last 6 years we are doing the same thing. हम बुलडोजर चलते हैं जब आप सिटी और कुछ एरिया में आपको कुछ छोटा मोटा एविक्शन करना है, बट वी हैव टू एविक्ट लैक्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड, और हमारा चैलेंज बहुत ज़्यादा है. लास्ट 1 साल में कम से कम वी हैव क्लियर्ड नॉट लेस देन 5 to 6,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड फ्रॉम एनक्रोचर. तो 5 से 6,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड हैज बीन क्लियर्ड फ्रॉम एनक्रोचर. कितना बुलडोजर चला है, कितना हाथी चला है, कितना घोड़ा चला है, इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हम कामयाब हुआ. और कम से कम अभी तक जो हमने हमारे लिए एजेंडा एक किया था कि इस रास्ता में हम लोग आगे बढ़ेगा, उस रास्ता से हम आगे बढ़ रहा हूँ. कल ऐसा एक घटना हुआ कि असम में हमारा अनफॉर्चुनेटली इन मेनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट टुडे वी आर इन माइनॉरिटी. व्हेन वी सेड वी आर इन माइनॉरिटी, भारतीय लोग ही माइनॉरिटी है, जो माइग्रेटेड है दे आर मेजॉरिटी, वी आर माइनॉरिटी. कल ऐसा ही एक थाना में कोई लोगों ने अटैक किया, थाना को बर्न डाउन किया. तो जैसे रेस्पॉन्स देना था हम रातों रात में दे दिया हूं, और मेरा लगता है आगे हिम्मत नहीं करेगा. देखिए, इलीगल माइग्रेशन पर पहले ऑर्गेनाइजर पंचजन्य ने एक मुहिम चलाई थी 70s में और 80s में. पहली बार ऑर्गेनाइजर और पंच पर आकर कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी में है वो भारतीय है, जो मेजॉरिटी में है वो माइग्रेंट है. तो मुझे लगता है पॉलिसी लेवल पर कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है. लेकिन फिर भी हेमंता, मुझे लगता है कितना 177,000 हेक्टर. देखिए, हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट में वी आर माइनॉरिटी. जब हमें माइनॉरिटी बोलता हूँ, जो भारत का मूल निवासी है दे आर इन माइनॉरिटी. नाउ टेक्निकली किसका पास भारतीय नागरिकता है नहीं है, दीज आर मैटर ऑफ डिबेट, लेकिन प्राइमा फेसी भारत का मूल जातियों जो होता है दे आर इन माइनॉरिटी. नाउ आगे जाके वो लोग का पास काफ़ी लैंड एनक्रोचमेंट में है, और लैंड एनक्रोचमेंट का साथ साथ एक डिजाइन होता है कि अगर इस चुनाव में आप 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप है, नेक्स्ट में आप थोड़ा सा एक्सपांड करके नज़दीक वाला और पास में चला जाइए. तो हमने अभी हमारा जो आइडिया है, लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ असम इज इन देयर रडार. धीरे 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 वहाँ जा रहा है. तो वहाँ से ये लोगों को जो भी इलीगल है उन लोग को हटाना, ये एक हमारा काम है. पहला साल में आउट ऑफ दैट 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हमने फुलफिल कर चुका हूँ, और आगे जाके करना है और हम लोग करते रहेगा. और अभी उसमें मेरा लगता है कम से कम असम में 1-1.5 लाख हेक्टेयर तो जमीन होगा ही होगा जहाँ में कंप्लीट इलीगल ऑक्यूपेशन है. तो मतलब सेंट्रल लेवल पे जब रूल्स एंड नोटिफिकेशन जब होगा आपने अपनी तरह से एनआरसी लागू कर दिया है. देखिए, ये एनआरसी तो एक विषय है, बट हमारा साथ एनआरसी का साथ साथ और कोई सारे विषय हमारा साथ जुड़ा हुआ है. पहले हम लोग को ये इंश्योर करना है कि वी डू नॉट लूज मोर लैंड्स, वी डू नॉट लूज मोर डिस्ट्रिक्ट, we do not lose more assembly constituency. So that is a preventive mechanism. आगे जाके जब एनआरसी वगैरह इम्प्लीमेंट होता है तब लीगल इलीगल सिटीजनशिप का एक डेफिनेशन आते हैं, तब आपको और कुछ करने का मौका मिलता है. बट
इमीडिएट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि और कोई डिस्ट्रिक्ट और कोई जगह में किसी का इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो। दादा, और जो हमारा जो ये सारे चीज होता है, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर एनी पब्लिसिटी काइंड ऑफ थिंग, ये हमारे लिए जरूरी है। इट इज डीपली रूटेड विथ आवर आइडेंटिटी क्राइसिस, हमको करना ही है ये। लेकिन चुनाव से पहले भी और बाद में जैसे आपने फोर्थराइट पोजीशन लिया, असम का इशू पुराना है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, अचानक पिछले 5-10 साल में हुआ, ऐसा भी नहीं है, फेजेस में हुआ है। लेकिन यू आर द वन हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कल्चर और आइडेंटिटी कॉल्ड मिया कल्चर। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट बिटवीन द लोकल असमीज मुस्लिम एंड द मिया कल्चर यू टॉक अबाउट? देखिए, असम में 36% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन को आप खास करके 3 हिस्सा में यू कैन डिवाइड। एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसको हम इंडिजिनस मुस्लिम मानते हैं, और उनका रहन सहन खाना पीना जो आपका हमारा है ऐसा ही है। तो वो लोग हमारा जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में दे आर पार्ट ऑफ दैट, and we do not have any grievances against them, neither they have any grievances against us. Second, there are Muslim population who have converted probably 2 generations before, but they still carry, उनका घर का सामने अभी भी आप तुलसी का पौधा आपको मिलेगा, and sometimes the ladies of the house still they maintain the cultural part of our civilization. उनको हम लोग देसी मुसलमान का नाम में जानता हूं। ये दोनों सेगमेंट को अगर आप अलग कर देते हैं, then the other kind of Muslim population who have migrated to Assam, maybe somebody prior to 1971, some they post 1971, but they themselves identify as Mia Musalman. वो लोग अपना भाषा, अपना लैंग्वेज, अपना जो भी है दे वांट टू मेंटेन, और वो लोग अपने आप बोलता है भाई हम लोग मियाँ मुसलमान है। तो इवन स्कूलिंग दे कभी कभी सेंसस में भी लिख देता है हमारा लैंग्वेज क्या है, मियाँ है। हम बोला जब आप मियाँ अपने आप को बोलता ही है तो मैं भी आप लोग को बोल लेता हूँ, तो अब उसमें क्या आपत्ति है। तो इसीलिए हम वो मुसलमान को मियाँ मुसलमान बोलता हूँ, और बाकी लोगों को हम बोल सकता हूं कि ठीक है देसी मुसलमान, हम जैसा आप भी ऐसा ही है। सो वी डू नॉट डिस्टिंग्विश। तो अल्टीमेटली एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट की जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कोई भी पॉलिसी डिसीजन करते हो, तो अभी धीरे धीरे आपको देखिए, भारत में जब मीडिया में इंटेलेक्चुअल स्पेस में डिस्कशन होता है तो आपका भी छवि अचानक एक हिंदुत्व फायर ब्रांड वाली अभी बनने लगी है। तो क्या अभी भारत में ये कंपटीशन चलेगी, हु इज मोर फायर ब्रांड हिंदुत्व? देखिए, हमारे लिए हिंदुत्व करना जरूरी नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग, जो एक भारत का नागरिक को करना चाहिए। जब हमें मदरसा बंद करने का बात करता हूँ, यू डोंट डू इट फॉर हिंदू, यू डू इट फॉर मुसलमान। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है तो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर हिंदू, हिंदू का तो इसमें कोई इशू नहीं है। यू आर डूइंग इट फॉर मुसलमान, यू आर डूइंग फॉर पीपल हु बिलीव इन इस्लाम। सो हमें हिंदुत्व बोले या हमको सबसे मुसलमान का सिंपेथाइजर बोले, वो डेफिनेशन आप डिसाइड करें। लेकिन जब तक मुसलमान का अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है, कोई मदरसा बंद करने का बात करता है, उनका जैसा मुसलमान का दोस्त कोई हो नहीं सकता है। दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडियन मुस्लिम। और इंडियन मुसलमान को, वो लोगों को हिंदुत्व नहीं बोलना चाहिए, वो लोगों को अपना फ्रेंड्स बोलना चाहिए, और ओवैसी जैसा लोगों को उनका दुश्मन बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दादा, इसको एक और डायमेंशन दिया जाता है। डे बिफोर यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक अबाउट इट। सडनली जैसे ही आप इस लाइन को ले लेते हो और इलीगल माइग्रेशन के बारे में, तो ये
लैंग्वेज आइडेंटिटी का भी इशू बनाया जाता है, और भारत की डाइवर्स लैंग्वेज आइडेंटिटी असम में आकर या ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में आकर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर वो कभी असमीज आइडेंटिटी बन जाती है, कभी वो एंटी बंगाली, एंटी हिंदी, फिर उसके अलग अलग शेड्स आ जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस एंड एट गवर्नेंस लेवल हाउ डू यू एड्रेस दिस? देखिए, मेरा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइज कि आपका मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए और मातृभाषा से आपको शिक्षा लेना चाहिए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन आगे जाके अगर एक असम का लड़का, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, देश तो तुम्हारा है, तो तुमको तुम्हारा यूपी का फैक्ट्री का ऊपर भी तुम्हारा अधिकार है कि इसलिए तुम जो इनकम टैक्स भरता है उसी से तो यूपी में भी होता है फैक्ट्री या असम में भी होता है। जब एक हम लोग समझने लगता है कि देश हमारा है, देश में हर जगह में काम करने का मेरा अधिकार है, तो आपको हिंदी सीखना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए मेरा नहीं लगता इसमें लैंग्वेज में कोई दुविधा है। आपको मातृभाषा में आप खूब पढ़िए, साथ साथ में आप हिंदी भी पढ़िए, सो दैट यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यू कैन वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और मैंने कम से कम बहुत रात इसके लिए सोचा, भाई डिस्प्यूट कहाँ है। मुझको असमिया, मैं असमिया सीख लेता हूँ माँ का गोद में ही, आगे जाके मैं अगर हिंदी भी सीख लेता हूँ उसमें मेरा क्या कमी है? लोगों को सीखना चाहिए और गौरव का साथ सीखना चाहिए, उसमें क्या असुविधा है? तो एक इसके साथ आपने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया एंड आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने लास्ट टाइम जब हम बैठे थे तो इनफॉर्मल डिस्कशन में भी वो आया था। हेमंत दा ने अपने सारे एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, असम गवर्नमेंट को, इनको सबको अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन बिताने के लिए छुट्टी देने का निर्णय किया है। 3 दिन। 3 दिन। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? देखिए, हम सरकार चलाता हूं, लेकिन आप अगर सरकार का साथ भारतीय सिद्धांत का मूल भेटी को भी आप जोड़ लेता है तब सरकार चलाना आसान हो जाता है। आज क्या होता है, जब हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा बहुत कैजुअली वार्नली मिल जाता है, उनको बेटा को देखना है, उनका कोई घर बना रहा है तो उसको देखना है, दे रिमेन बिजी। लेकिन साल में मैं अगर उनको 3 दिन समय देता हूँ कि इस 3 दिन आप कुछ मत कीजिए, खाली आपका पिता माता का साथ आप बिताइए। When he comes back to office, he comes as a better human being, much better human being, और उसी से सरकार का फायदा होता है। इस साल मैंने जनवरी में 3 दिन छुट्टी दिया, फ्राइडे कुछ बंद था, सैटरडे संडे मिला के 1 सप्ताह। 1 सप्ताह हमारा सरकारी कर्मचारी लोग जाके पिता माता का साथ मिला, किसी को मंदिर में लेके गया, किसी का घर में पिता माता का साथ बैठ के खाना खाया। सारे लोग अपना पोस्ट फेसबुक में लगाना शुरू किया, तब जाके प्राइवेट कर्मचारी भी ये शुरू किया और एक माहौल बना। और जो समाज में बेटा बेटी और पिता माता का रिश्ता बहुत ही हेल्थी रहता है, वो आदमी बेटर ह्यूमन बीइंग होगा ही होगा। उसके लिए हमको कोई बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कोई ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं है। पिता माता का साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने आप आपका मन में जो भी आपका थोड़ा सा है वो अपने आप हट जाएगा। बिकॉज दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन मेक यू मोटिवेट कि भाई हम भी आगे जाके वही लव एंड अफेक्शन मेरा ऑफिस में जो आता है उनको दूंगा। और आप अभी असम में जाके देखिए, काफ़ी वर्क कल्चर चेंज हो गया है। छोटा पोटा ऐसा काम हम लोग कर रहा हूँ एंड थिंग्स आर इन गुड, मतलब एक अच्छा फेज में आ चुका है। ये जो सारे इश्यूज है, आप उसको हिंदुत्व कह लीजिए, इंडियननेस कह लीजिए, परिवार की संकल्पना कह लीजिए। आप पहले और भी दलों के साथ रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, उसमें रहते हुए और बीजेपी में रहते हुए क्या अंतर हो जाता है? वैल्यूज तो वही है। देखिए, 2
बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सोसाइटी को देखने का। मैं कांग्रेस में शायद 22 साल के जीवन में कांग्रेस में ही रहा, तो कांग्रेस में ऐसा एक माहौल बन जाता है कि बियॉन्ड गांधी देयर इज नथिंग। अगर आप बोलता है कि आप बिट्रे कर दिया है कांग्रेस को, किसको बिट्रे किया है? गांधी फैमिली को बिट्रे किया है। तो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपका बात अस्वीकार किया, ये तो देश का बिट्रे का साथ बराबर नहीं हो सकता है ना। They will put statement in a way that if you are defying Gandhi as if you are defying भारत। तो ये कांग्रेस का अंदर में देश को ही गांधी माना जाता है। लेकिन बीजेपी आने का बाद या बीजेपी का जो माहौल है उसमें हम लोग बहुत गर्व से बोलता हूं कि भाई लीडर तो छोड़ दीजिए, मेरा दल से भी नेशन ऊपर है। हम बोलता है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारा कोई उसमें कोई लीडर भी खराब नहीं पाता है, भाई मेरे से भी राष्ट्र फास्ट बोल दिया। लेकिन अगर आप राहुल गांधी सोनिया गांधी का पास जाके बोलता है कि भारत आपसे महान है, तो आपका तो नौकरी साफ हो गया ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और लेकिन वो तो अभी कहने लगे कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है। ये देखिए, ये लोग काल भी मैंने एक देखा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, तो मेरा 5000 साल का संस्कृति कहां गया? अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मीन्स यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। लेकिन असम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है। अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया, अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा, तो अब क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम हुआ, भारतीय जातीय कांग्रेस हुआ, हर जगह में आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? तो ये राहुल गांधी का अभी पता नहीं और कौन एडवाइजर अभी सामने लगा है। तो कंट्री को तोड़ने का ये यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? बोला आपने निगोशिएट किया भारत में आने में, मतलब अगर आप निगोशिएट किया तो यू कैन डी निगोशिएट ऑल्सो टू गो बैक। मतलब इनडायरेक्टली ही इज एनकरेजिंग ए सेसेशनिस्ट एलिमेंट। मेरा जो अल्फा बोलता है और राहुल गांधी बोल रहा है, एक्सेप्ट द इंग्लिश देयर इज नो डिफरेंस। वही परेश बोरुआ बोलता है कि हम तो यूनियन ऑफ स्टेट है, अभी हमको जाने दीजिए, हमारा काम पूरा हो गया। अरे भाई 5000 साल रामायण महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, लासित बरफुकन, शिवाजी, ये कहां गया ये सारे सब? एक बात मैं उनको दोष नहीं दूंगा, कोई जेएनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया, शायद वही उनको सिखा दिया। इसलिए उनको अगर ला के आप पूछताछ करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, भाई अमेरिका का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म का देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। इंडिया वाज कल्चरली वन नेशन फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग। कोई समय में असम का कामरूप स्टेट ही अयोध्या तक था। तो हमारा ये हमारा हिस्ट्री इज अ शेयर्ड हिस्ट्री। आप दक्षिणात्य का भी एक लोगों का नाम कृष्ण होता है, असम का लोगों का भी एक नाम कृष्ण होता है, राम सब जगह होता है। तो आप ऐसे कोई आके एग्रीमेंट करके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, वो नहीं होता है। लेकिन उनका मजबूरी है, उनको जो सिखाएगा वही वो बोलेगा, टोटे और उससे ज्यादा क्या बोल सकता है। एक आपने अभी नाम लिया लसित बरफुकन का। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, चुनाव के समय भी आपने घोषणा की कि लसित बरफुकन का मेमोरियल बनाएंगे, असम के बाहर भी बनाएंगे, म्यूजियम भी बनाएंगे, दिल्ली में भी बनाएंगे, मुंबई में भी बनाएंगे, साउथ में भी। क्या कारण है? लसित बरफुकन निश्चित बड़ा फ्रीडम फाइटर है। देखिए बहुत लोग भारत में नहीं जानते हैं, असम हैज ए यूनिक प्लेस इन आवर हिस्ट्री। 1200 शतिका से टिल ब्रिटिश एनेक्स असम, असम का ऊपर 17 टाइम्स
इस्लाम का अटैक्ड हुआ और हमने हर टाइम रेजिस्ट किया। अगर भारत का सारे महापुरुष का बारे में आप अगर पढ़ेगा, उसमें दिखाई देगा दे स्ट्रगल, बट दे डिड नॉट सक्सीडेड टू द एक्सटेंट दे शुड हैव सक्सीडेड। इसलिए भारत में तो औरंगजेब तो फैल गया सारा जगह में, लेकिन आसाम ने वो फैलने नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी का दिन से आसाम का ऊपर अटैक हुआ इस्लामिक सिविलाइजेशन का, और लासित बरफुकन तक हमने 17 टाइम्स इसको रेजिस्ट किया। तो ये बहुत ही गौरवशाली एक हिस्ट्री है जो लोगों को जानना चाहिए। मैंने बहुत दिल लगा के भारत का बाकी महापुरुषों को बारे में पढ़ा है। सबने संग्राम किया, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन आसाम हमेशा विक्टोरियस रहा। हमने कभी आने नहीं दिया वो लोगों को। लास्ट में कांग्रेस वो लोग को लेके आया, अलग बात है, वो हमारा थोड़ा बदकिस्मती रहा, लेकिन हमारा वीर पुरुष ने कभी आने नहीं दिया। तो थोड़े दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था कि कैसे महाराज पिठू ने अलाउद्दीन खिलजी पूरा देश को ले लिया था हाथ में, आसाम में रेजिस्ट किया, और इसका कारण तिब्बत और चाइना जाके वो लोग नहीं पहुंचा। आज अगर साउथ ईस्ट एशिया में इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं पहुंचा, इसका कारण आसाम ही है कि आसाम हैज रेजिस्टेड एवरीथिंग। तो इसीलिए ये बहुत ही गौरवशाली एक इतिहास है लासित बरफुकन का। दिस ईयर वी आर कोमेमोरेटिंग हिज 400 years of birth century, तो 400 years of his birth। सो इसको थोड़ा भव्य रूप से हम लोग करने का कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट लोग जाने, लोगों इतिहास पढ़े। क्या कारण है लेकिन के ये आप महाराजा पृथु से लेकर बरफुकन, श्रीमान करदेव, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, इतनी बड़ी परंपरा रहते हुए भी नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा का पूरा इतिहास हमारे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम हिस्ट्री से गायब रहा? ऐसा है कि लेफ्ट हैज रियलाइज कि नॉर्थ ईस्ट एक फॉल्ट लाइन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का अगर आप ये बोलते रहता है कि योर कल्चर इज डिफरेंट, योर लैंग्वेज इज डिफरेंट, दैट मीन्स देयर विल बी रिएक्शन टू द मेनलैंड, और हमेशा देयर विल बी डिस्टर्बेंस। और एक समय आप मिजोरम सीएम जोरामथंगा जी का अगर आप लाइफ जो उन्होंने मेमोरियल लिखा वो पढ़े, तो उन्होंने ये लिखा कि मैं चाइना से ही ऑपरेट किया था। तो लेफ्ट का दुस्ती तो चाइना से था उस समय। तो नॉर्थ ईस्ट को लोगों को समझाना सिखाना कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आप भारतीय सभ्यता का आप कभी भी अंग नहीं था, ये एक सिस्टेमेटिक सलाह। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हमने इस्लाम को रेजिस्ट किया, उसका साथ साथ मेनलैंड इंडिया का साथ भी हमारा रिश्ता कम हो गया। किस लिए? मेनलैंड इंडिया वाज रूल्ड बाय मुगल। अगर मैं मुगल को रेजिस्ट किया हूं, मतलब मेरा मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी भी कम हो गया। तो इसीलिए आसाम का जो स्वर्णिम इतिहास है, इसका बारे में कोई चीज भारत का मेनलैंड का लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानने का कारण यही है कि वी हैव रेजिस्टेड द रूल ऑफ इस्लाम, औरंगजेब फलाना सबका। उसका कारण हम लोग का एक इंटेलेक्चुअल एक कट ऑफ हो गया था। इसका एडवांटेज लेफ्ट लोगों ने खूब लिया। लेकिन अब जाके जब हमारा लोगों ने ये बात करने लगा, भाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिस्टेड इस्लाम, for whom we have registered Islam, to save our civilization. And what was our civilization? This Indian civilization was our civilization. लोगों ने देखा कैसे महाभारत का दिन से, कैसे रामायण का दिन से हम लोग पूरा भारतीय सभ्यता का साथ जुड़ा रहा। तो नाउ देयर इज ए न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग। नाउ लेफ्ट का मोटा मोटी दुकान बंद हो चुका है, वो तो बंद हो जाएगा थोड़ा दिन में, वो तो और नहीं चलेगा। दादा, now you have spoken about the change. क्या ऐसा बदलाव हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में? Is it just a political change, or there is something fundamentally changing about the connectivity and the culture and two part of things. The
Bharat as a whole, they are appreciating the role of Northeast right from the day of beginning of our civilization. अभी भारत का सारे जो अच्छा लिखता है, जो भारतीय सभ्यता का बारे में लोगों को बोलना चाहते हैं, असम एंड नॉर्थ ईस्ट इज नाउ प्रोमिनेंटली फिगरिंग. अभी अभी मैं पांचजन्य का एक एडिशन बाहर में देखा, रानी गाइडलू का बारे में वहाँ में लिखा हुआ है. तो कौन लोग जानते थे, लेकिन अभी पांचजन्य हो, ऑर्गेनाइजर हो, आप लोग आके एक असम का जो सिविलाइजेशनल लिंक था, नॉर्थ ईस्ट का जो लिंक था, इसका ऊपर आप लोग लिखना शुरू किया. मोदी जी ने कोई सारे डेवलपमेंट में का काम किया, कनेक्टिविटी में. सबसे बड़ा बात हुआ कि एक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट का एक मेन स्ट्रीम बन चुका है कि भाई कोई भी अगर आज 7 कॉलेज लगाना है, 7 IIT करना है, 7 IIM करना है, नॉर्थ ईस्ट वहां में वो लिस्ट में होगा. हमको इसके लिए कोई पत्र लिखना जरूरत नहीं है. तो नॉर्थ ईस्ट का एक डेवलपमेंट नैरेटिव अलग हो गया है लास्ट आफ्टर 2014. नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट का साथ भारत का मेनलैंड का संबंध जो एक समय थोड़ा सा टूट गया था, वो बहुत जबरदस्त अभी फिर एक री एनर्जाइज हो रहा है. तो नॉर्थ ईस्ट नाउ चेंजिंग एवरी डे एंड चेंजिंग फॉर गुड, चेंजिंग फॉर बेटर. इमोशनल लेवल में, डेवलपमेंट लेवल में, आप हर क्षेत्र में, ये कोई खाली पॉलिटिकल नहीं है. Before opening the session for the audience, last question from my side. यदि आने वाले 5 साल के असम के लिए मैं आपको कहूं कि आपके 2 प्रायोरिटी एरिया, ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, असम का अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, तो हमको असम को धीरे धीरे जो भारत का पास से स्टेट्स है उस लेवल तक लेके जाना है और वी आर ऑलरेडी मूविंग ऑन दैट डायरेक्शन. ये साल हमारा GDP 5 लाख करोड़ हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे वी आर ज्वाइनिंग इन दैट लीग. ये हमारा सबसे बड़ा काम है कि वी मूव फास्ट. और मेरा जो एक पर्सनल जो एजेंडा है, ये एजेंडा है कि हमारा असम जो एक भारतीय सभ्यता का पीठ स्थान था सबसे पहले से ही. मैंने अभी कुमार भास्कर बर्मन का बारे में आप पढ़ चुके, आप यू कैन रीड अबाउट हिम, यू कैन रीड अबाउट लासित. सो हम भारत का जो एक बेसिक जो एक इथोस है, जो हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यू है, उनका साथ हम लोग का कनेक्ट जो था ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए. वी शुड फील लाइक ए इंडियन, द लाइक ए पीपल फ्रॉम UP फील इंडियन, पीपल फ्रॉम दिल्ली, पीपल फ्रॉम एनी अदर स्टेट, दैट आई एम ए प्राउड इंडियन. इन असम ऑल्सो दैट फीलिंग शुड बी देयर कि आई एम ए प्राउड इंडियन. अभी एक मार्जिनल सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करके असम को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व बनता है और इसको हम लोग को करना चाहिए. थैंक यू. नाउ वॉलंटियर्स प्लीज, इधर बख्श साहब है, जो वाइस चांसलर, इज अ चांसलर हैदराबाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, फॉर्मर चांसलर. अच्छा, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा शर्मा साहब आपको कि आपके स्टेट में जो 36% मुस्लिम आबादी है, उसके लिए जो उनके मदरसाज हैं उनको जो मॉडर्नाइज आपने किया है और उनको आप चाहते हैं कि वो साइंस भी पढ़ें, दीन भी पढ़ें, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है. मैं इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा. यूजुअली दे आर वेरी हैप्पी. कल उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई कंडेम इट. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है. आम मुसलमान वहाँ का 50% खुश है, 50% पे बेशक ढक्कन कसा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा. और बस ये बता दीजिए कि उनको क्या यूनिवर्सिटी तक अब जो है उनका रास्ता बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये बड़े मदरसे के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, कुरान जैसी किताब को कंठस्थ कर लेते हैं, एक एक शब्द बिल्कुल ठीक. इनको हमें सही रास्ते पे डालना है. देखिए भाई साहब, ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए. जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा
तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रसा नहीं जाएगा। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, I will also give a part of credit to his Hindu past. रवि जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिंधी एकेडमी के चेयरमैन है। इधर एक मिनट भाई साहब, आ रहा हूँ आपके पास। धन्यवाद सर, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषाओं को लेकर बहुत अच्छी बात की। एक छोटा सा सुझाव निवेदन के रूप में, असम के जितने अध्यापक असमिया पढ़ाते हैं, प्रयास करिए विविध प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से आप एक MOU करिए और कुछ अपने टीचर्स वहाँ भेजिए आप, वो जिनको आप, और फंडिंग आपकी हो, आप उनको सैलरी वहाँ से दीजिए, जैसे कि वो असमिया आकर के वहाँ पर पढ़ाए। तो ये जो भारत की भाषाओं के मध्य की दूरियां हैं, इससे एक दूर हो जाएंगी। दूसरा एक आपसे निवेदन है, आप भारतीय भाषाओं को लेकर के असम में किस प्रकार की योजनाएं ला सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटी ला सकते हैं? क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं? और बाइलिंगुअल टीचिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने सारी बातें NEP को ध्यान में रख के कही। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा असम में हाल ही ने हमने एक बहुत बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी शुरुआत कर चुका हूँ। और आप जो सुझाव दिया है कि दूसरा स्टेट का लोगों में असमिया का सिखाया जाए और हम भी दूसरा भाषा सीखें और एक लैंग्वेज इंटरेक्शन हो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं लोगों को यही बोलते रहता हूँ कि आप इमोशनली नहीं, फॉर इकोनॉमिक रीजन आप हिंदी और इंग्रजी का पूरा शिक्षा लीजिए। मदर लैंग्वेज को आप अपना बेस मानिए, लेकिन आगे जाके भारत में कोई भी जगह में आपको नौकरी करना है, आपको हिंदी सीखिए, और आगे जाना है फिर इंग्रजी भी सीखिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और माहौल भी बन रहा है, और मेरा लगता है कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP हमारा जो लैंग्वेज का फॉल्ट लाइन है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। पीछे एक मैडम कब से खड़ी है, ऊपर हाथ ऊपर कर रही है जी। नमस्कार दादा, मैं অসমৰে হয়, ज्योति नाम है। मैं एक्चुअली आसाम से ही हूँ। तो मैं आपको, मेरा 3 क्वेश्चन है आपसे। एक ही बस ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल सिलसाकू बोल के वहाँ पे उच्छेद किया है आपने ट्राइबल लोगों को, ज़्यादातर उसमें ट्राइबल लोग हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप, ठीक है जो इलीगली रह रहे हैं उनको कर रहे हैं, लेकिन जो ट्राइबल है उनको आप देखिए वो इशू थोड़ा अलग है। दैट इज ए वेटलैंड एंड गुवाहाटी शहर का सारा पानी वही जाते हैं। अच्छा, अगर आप वहां से लोगों को आप नहीं हटाएगा तो गुवाहाटी विल बी अंडर आर्टिफिशियल फ्लड फॉर मेनी डेज। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अदर जगह उनको, जैसे गरुखुटी लोगों को आपने दिया, उनको अलग जगह से हम बोल चुका हूँ कि आपको जो भी अल्टरनेट जगह चाहिए, जो भी मुआवजा चाहिए, आप ले लीजिए। ठीक है। और उल्फा वाला थोड़ा आप, उल्फा आप जब आए थे शुरू में तो आपने बोला था कि उल्फा के साथ बात करके जो हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए। तो अभी तक आपने कुछ करा नहीं, 1 साल हो गया आपका। सब ये सारा मामला 1 साल में नहीं होता है, समय लगता है। ठीक है, थैंक यू जी। वैसे जी सुरेंद्र जी आ रहा हूँ। हिम्मत जी नमस्कार, प्रणाम। मैं देवदत्त माझी हूँ, पश्चिम बंगाल से आया हूँ।
हिंदू कार्यकर्ता हूँ। ऐसा है कि आसाम में हो या बंगाल में दुनिया के हर मुसलमान जो है वो कुरान हदीस को मानने वाले हैं और उनके आदर्श इमाम हुसैन, मोहम्मद, अली बकर, खिलजी ये सब है। तो जब तक वो मुसलमान हदीस, कुरान और इस्लामिक हिस्ट्री पे यकीन करेगा तो वो उसका आदर्श वही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमको ये लगता है कि हर मुसलमान का भारत में घर वापसी होना चाहिए और उसके लिए हम सबको एफर्ट देना चाहिए, तभी उनका आदर्श गुरु गोविंद सिंह बनेंगे, लासित बोरफुकान बनेंगे और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। देखिए, मैं एक बात आपको बोल सकता हूं कि प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर शिक्षा होने से लोग अपने आप घर वापसी होगा। घर वापसी मतलब क्या है कि भारत को अपना माँ मानो। हम ये नहीं चाहता हूँ कि आप मंदिर में जाओ या नाम घर में जाओ, हम यही चाहता हूँ कि आप भारतीय बने, आप भारत को माँ माने और भारत को आप आगे ले जाइए। भारत में सब लोगों का साथ भाईचारा में रहिए। और मैं ये विषय में यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। सब लोग जो जिसका भी मन में अभी भारत को माँ मानने में थोड़ा कंफ्यूजन है, वो लोग मानने लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं एकदम कोर रिलीजन का चक्कर में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारा हिंदू का एक ही है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा विवांति। तो हम हर रास्ता में सत्य का अनुसंधान कर लूँगा, लेकिन हम अच्छा भारतीय बने, भारत को माँ माने, यही सबसे हमारा बड़ा मकसद होना चाहिए। जी यहाँ पे प्रफुल्ल जी, एक सुरेंद्र जी से नहीं, मैडम आप पहले। मेरा एक प्रश्न है कि आपने बहुत ही स्ट्रांगली जो ये काम किया है मदरसों वाला, ठीक है, क्रेडिट बताइए, क्योंकि देश में बहुत सारे राज्यों में भाजपा सरकार है लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर पाया जो आपने किया, तो उसका राज बताइए। देखिए, आसाम, यूपी, बंगाल, हमारा कोई स्टेट है उसका थोड़ा हिस्ट्री अलग है। हम लोग गवर्नमेंट मदरसा चलाया था और कोई सारा है कि प्राइवेट लोग मदरसा चलाता था। तो गवर्नमेंट मदरसा जब हमने देखा कि गवर्नमेंट मदरसा चलाना ये उचित नहीं है, हमारा पैसा जो एक सेकुलर नेशन का एक पैसा है, दैट मनी शुड नॉट गो ऑन एडुकेटिंग ए पार्टिकुलर रिलीजन। तो इसीलिए हम 800 लगभग 800 मदरसा हमने बंद किया, 2-3 अरबिक कॉलेज बंद किया, काफ़ी सारे हमने पूरा एकेडमिक इंस्टीट्यूट को बंद किया और तुरंत हम ये सारे इंस्टीट्यूट को जनरल इंस्टीट्यूट बनाया। थोड़ा रेजिस्टेंट था लेकिन हमने उसको फेस किया और अभी जाके हाई कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ असम इज करेक्ट और कोई स्टेट का फंडिंग होना नहीं चाहिए इसमें। तो और असम, इन असम एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड दैट। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का सुरेंद्र जी। नमस्कार सर, I am Surendra Ambardar, MLC from Jammu, erstwhile Jammu Kashmir. Sir, my question is that the whole Himalayan range has a definite and significant geostrategic location. Can we look forward that all the 7 states in the northeast, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir, can we have a Himalayan squad, especially keeping the Kailash Mansarovar into centroid? देखिए, ये सारे बात चर्चा करने वाला है, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मैंने लास्ट 5-6 इयर्स में एक बात सीखा हूँ, कंट्री को जितना हो सकता है एज ए इंडिया रहने देना ठीक है। तो बहुत ही हम अगर एक कारण के लिए एक आइडेंटिटी अपने लिए क्रिएट कर लेता हूँ, दूसरा आइडेंटिटी एक क्रिएट कर लेता हूँ, दैट्स लीड्स टू, और राहुल गांधी का जो बल्कनाइजेशन वाला स्टेटमेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट, उधर तक लेके जाता है। तो हमको हमारा प्रॉब्लम सेम है, लेकिन जितना हो सकता है वी शुड इमर्ज एज इंडिया, दैट शुड बी आवर मोटो। Thank you Dada, for a very candid and difficult times. You have come over and dealt with almost all kinds of issues with us. I know many times I go to
दादा इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, 20 मिनट रहता है और पता चला कि 40 मिनट हम पहले ही इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही किसी विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। और इतना नॉलेज है हिस्ट्री का कि बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। आप लोगों ने भी अनुभव लिया होगा, पृथु से लेकर बरफुकन तक आपको असम की पूरी हिस्ट्री सुना सकते हैं। तो मुझे बहुत आनंद हुआ आज हमारे विशेष निमंत्रण पर 75 ईयर्स हुए। 75 ईयर्स से हम ये नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं, आज फोर फ्रंट पर आकर दादा उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, ऑल ऑफ यू, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हेमंता बिस्व सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दादा। थैंक यू वेरी मच। और मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के लिए बस मैं दो मेहमानों को बुलाना चाहता हूँ। उदय माहौरकर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आएँ, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और प्रख्यात नृत्यांगना नलिनी कमलनी जी से भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आएँ जी, क्योंकि जो सेशन रहा वो जितना पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ लोगों ने सुना है वो अपने आप में इस बात की गवाही है कि लोगों ने बेहद एंजॉय किया है इस सेशन को।